حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو، فضول باہر نہ پھرو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو، مثلاً غیبت کرنا، چگلی کھانا، بیہودہ باتیں کرنا، بلا ضرورت بولنا، بغیر احتیاط کے ہر قسم کی باتیں کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی دینا، انسان یا جانور پر لعنت کرنا، شعر و شاعری میں ہر وقت لگے رہنا، مذاق اڑانا، راز ظاہر کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹی قسم کھانا، دو رنگ کی باتیں کرنا، بلا وجہ کسی کی تعریف کرنا اور بلا وجہ سوالات کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وصیت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند وصیت فرمائی جن میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی زبان کو سوائے خیر کے ہر قسم کی بات سے محفوظ رکھو، اس سے تم شیطان پر قابو پالو گے۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھو تو شیطان آپ کو بھڑکا نہیں سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔ فضول بات کرنا، جیسے کہ کہا جاتا ہے 6 صفات کے تذکرے میں بتایا جاتا ہے، ہماری دیندار بہنیں بتاتی ہے کہ لایانی سے بچنا۔ ٹھیک ہے، لایانی کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ یہ سب کچھ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، بیہودہ باتیں، چگلی کھانا، کسی کے راز کھولنا، مذاق اڑانا وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، ترکی کے سیکنڈ لاسٹ خلیفہ یا آخری خلیفہ اتنا پتہ نہیں ہے، مگر یہ پتہ ہے کہ وہ اپنے پاشاؤں کو ہمیشہ ایک بات کی وصیت کرتے تھے، ہمیشہ، کہ فضول گوئی سے بچو۔ فضول گوئی ایک بہت بڑی بربادی ہے۔ پاشاؤں کا مطلب یہ ہے کہ چیف منسٹرز، ٹھیک ہے، جو ترکی کے چیف منسٹرز تھے ان کو وہ ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ فضول گوئی سے بچو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت ساری حدیثیں ہیں کہ فضول باتوں سے ہم کو بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے ایک قصہ تو بہت عام ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، شاید مولانا لوگوں کے بیان میں بھی سناؤں گا، کتاب میں بھی پڑھاؤں گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر کیسے بہتان لگے۔ تو یہ ساری چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ فضول گوئی، غیبت، چگلی۔ تو کچھ منافقین تھے، ان لوگوں نے الزامات لگائے تھے۔ یہ بہت بڑا واقعہ انشاءاللہ میں آپ کو کتاب میں سے پورا پڑھ کر سناؤں گی۔ تو جیسے کہ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ حسد کرتے 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 انسان اتنا بڑا حاسدین بن جاتا ہے۔ سورۃ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس چیز پر کہ میرا بندہ جب حسد کرتے کرتے بہت آگے نکل جاتا ہے تو وہ منافق بن جاتا ہے، وہ اتنا بڑا منافق بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ایک پردہ حائل کر دیتا ہوں اور میں چھوڑ دیتا ہوں کہ ابھی ایسے ہی رہے۔ تو پھر وہ منافق بن کر ویسے ہی اس کی موت آ جاتی ہے۔ پھر اللہ بہتر جانے کہ ابھی اس کی برزخ کی زندگی کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اللہ بہتر جانے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کی جنازہ پڑھائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی جی آپ منافق کا جنازہ نہ پڑھائے۔ تب سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کا جنازہ پڑھانا بھی بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے۔ ابھی کچھ لوگوں کو صرف اتنی بات معلوم رہتی ہے کہ بہت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، وہ باز نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کو ہمیشہ دعائیں کرتی رہنی ہے کہ یا اللہ ہم کو حسد سے بچا لے اور یہ ساری برائیوں سے بچا لے۔ شیطان تو اللہ تعالیٰ کو کھلا دشمن ہے اور وہ ایمان والوں کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اس نے تو اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ اجازت لی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا مردود، میرے نیک بندے تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے، چاہے تو کتنا بھی بہکا لے تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ تو جیسے کہ ایک بچی نے مجھے کہا کہ آپا آپ بتائیں ذرا اور اچھے طریقے سے آپ سمجھائے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میری ننند کی وجہ سے، میری جیٹھانی کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتی ہوں، یہ بہت پرانا ہے، بہت پرانا ہے۔ جیسے کہ آپ کو میں نے اس دن جہیز کی ویڈیو میں سنایا تھا کہ میرے بڑے بوڑھے جو ہے وہ میرے زیادہ تر فرینڈ ہے، میرے ہم عمر میرے فرینڈ نہیں ہے، بڑے بوڑھے میرے فرینڈ ہے۔ تو انہی سے میں نے ایک قصہ سنا ہوا ہے، تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب اس میں سچائی کتنی ہے تو اللہ عالم، پر آپ کو میں مثال کے طور پہ سمجھاتی ہوں کہ یہ سیلاب جو بولا ہے کہ کتنا بڑا طوفان آتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور جو بھی ایسی حاسدین عورتیں ہیں، جب یہ میں قصہ آپ کو سناؤں گی تو انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سمجھ میں آئیں گے، اور آپ جو وہ خاتون کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس پہ رحم آئے گا اور آپ یہ حسد کرنا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، چگلی کرنا وغیرہ وغیرہ یہ سب چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیملی رہتی ہے، فیملی کا جو مین ممبر رہتا ہے، جو گھر کا سرپرست، جو بچے بھی ہیں ان کے 2-3 بچے رہتے، تو ان کے پاپا سے کچھ کام ایسا غلط ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو سزا ہو جاتی ہے، تو وہ جیل میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے جیٹھ ہے گھر میں اور جیٹھانی ہے، تو جیٹھانی جو تھی اور ایک ننند تھی کواری، ٹھیک ہے، کواری ننند تھی، تو ان کی اہلیہ سے وہ بہت جلتے تھے، بہت حسد کرتے تھے۔ ماشاءاللہ وہ خوبصورت بھی تھی، ماشاءاللہ وہ نیک بھی تھی، تو وہ حسد کرتے۔ تو ہوتا کیا ہے، ان کو تو بہت اچھا موقع مل جاتا ہے کیونکہ ان کا شوہر تو جیل میں چلا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے رہتے، تو جیٹھانی بھی حسد کرتی ہے، ننند بھی حسد کرتی ہے، اور وہ اللہ کے نیک بندی، اور اللہ کے جو نیک بندے رہتے وہ نیک تو رہتے، وہ درگزر بھی کرتے ہیں، وہ عاجزی والے بھی رہتے، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے رہتے، پر وہ تقوی پرہیزگار رہتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے پر وہ تقوی پہ اٹل رہتے ہیں۔ سچ اور جھوٹ کو وہ ہمیشہ الگ الگ رکھتے، وہ چاپلوسی نہیں کرتے، وہ نقصان کو اٹھاتے، وہ ذلیل بھی ہو جاتے لیکن وہ تقوی پہ رہتے۔ یہ مومن کے، سچے مومن کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔
तो होता ऐसा है कि जेठानी उस पर जुल्म करती है, ननंद भी उस पर जुल्म करती है, क्योंकि उनको मौका मिल जाता है। और बच्चे बहुत छोटे छोटे रहते हैं, तकरीबन एक 7 साल का बच्चा रहता है और 2 उनसे भी छोटे रहते हैं, ठीक है। तो जो जेठ रहते हैं उनके, वो जेठ उनके ऊपर बुरी नज़र रखते हैं। तो एक दिन वो उसके जेठानी से कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे शोहर तो जेल में है और तुम्हारे शोहर जो है बड़े भाई, वो मेरे साथ ऐसा सुलूक करते, ऐसा बर्ताव करते। और ये चीज़ की खबर बच्चों को भी रहती है, बड़ा बच्चा जो रहता है 7 साल उम्र रहती है, उसको थोड़ी समझदारी रहती है, ठीक है। तो जेठ जो है वो छोटी भाभी पर काबू नहीं पा सकता है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि उनका शोहर जेल से रिहा होकर आता है। तो बड़े भाई, ननंद और जेठानी इतना ज़्यादा बहकाते हैं उसकी बीवी के बारे में, इतना ज़्यादा बहकाते हैं। तो वो क्या करता है, बगैर अपनी बीवी के कुछ भी बात सुने बगैर वो क्या करता है, अपनी बीवी को मार देता है, ठीक है। वो बीवी की एक बात नहीं सुनता है। और बड़ा जो बच्चा रहता है वो बोलता रह जाता है कि अब्बा हमारी बात सुनो, मगर उसके सर पे इतना खून सवार रहता है, क्योंकि ये हासिदीन लोगों ने, मुनाफिकीन लोगों ने इतना उनको बहका दिया रहता है, इतना बहका दिया रहता है। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि अगर किसी को कितनी बड़ी सज़ा भी हो जाए तो उसे सुना जाता है, उससे कहा जाता है कि तुझे मंजूर है। पर वो इतना बड़ा बेवकूफ़ रहता है, अहमक रहता है कि वो कुछ भी बात सुने बगैर अपनी बीवी को जान से मार देता है। बच्चों के सामने वो अपनी बीवी को मार देता है, बच्चों के सामने उनकी माँ को मार देता है। फिर क्या होता है, जब मौका मिलता है तो बच्चा जो रहता है बड़ा, वो सब बातें बताता है कि अब्बा ऐसी ऐसी बात है, बड़े अब्बा ने ऐसा ऐसा किया, अम्मी को परेशान किया, क्या कहते, बड़ी अम्मी ने बहुत परेशान किया, फुप्पू ने परेशान किया। उसके बाद समझ में सब कुछ बात आ जाती है उनको। जब मैं सब कुछ खोल के आपको बता नहीं सकती हूँ, यानी सब कुछ आपको क्लियर नहीं बता सकती हूँ, आप समझ रहे होंगे मेरा बोलने का मतलब ये कहानी के अंदर क्या है। फिर वो क्या करता है, जैसा उसको गुस्सा आया था बीवी को मार दिया, वैसा ही गुस्सा उसको आता है और वो फिर अपने बड़े भाई को भी कत्ल कर देता है, ठीक है। बड़े भाई को कत्ल कर देता है और बड़ी भाभी को भी कत्ल कर देता है। और क्या होता है, खुद जेल में चला जाता है। अभी छोटे छोटे बच्चे, जब वो पहली मरतबा जेल में गया था तो उसकी बीवी ने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल पोस के वो खिला रही थी, पिला रही थी। देखो, इसीलिए कहा जाता है कि बहुत बड़ा सैलाब है। उसने क्या किया, बड़े भाई को मार दिया, भाभी को मार दिया। अब जो कवारी ननन थी, वो कवारी ननन ने भी सही का साथ नहीं दिया, गलत का साथ दिया। तो अब क्या हुआ, अब उसके ऊपर कैसे आजमाइश आती कि ये जो सारे बच्चे हैं, छोटे भाई के बच्चे, बड़े भाई के बच्चे, और सब छोटे, कोई कमाने के काबिल नहीं, और सबको उसी को देखना पड़ता है। उसके बाद क्या हुआ, तो वल्लाह वाला, इतनी कहानी मुझे मालूम है। तो अभी आप सोचे कि ये कितनी बुरी बात है, ये लायानी, इसीलिए इसको लायानी कहा जाता है कि आग सूखी लकड़ी को जैसे खा जाती है, जैसे आग के अंदर हम सूखी लकड़ियाँ डालते हैं तो कैसी जल के ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे लायानी, फजूल गोई जो बातें हैं, इससे हमको बचना है। हम घर के अंदर रहेंगे, चाहे हमारे बारे में लोग कुछ भी बोले कि खुद को क्या समझती है, खुद को ये बहुत नेक समझती है, किसी के साथ बैठती नहीं, उठती नहीं, ये नहीं वो नहीं, चाहे कोई घमंडी बोले, चाहे कोई कुछ भी बोले, हम बाहर निकलेंगे तो 2 औरतें 4 औरतें बैठेंगी, उसमें नेक औरतें भी होंगी, तो भी उसके ज़बान से कुछ ना कुछ निकल जाता है। और अगर नहीं भी निकला तो वो बैठती है, वो सुनती है। एक सहाबा कराम का भी आपको मैं किस्सा सुना दूँ कि वो अपनी बांदी को लेकर बाज़ार में जाते। अल्लाह ताला को बाज़ार सबसे ज़्यादा नापसंद है, सबसे ज़्यादा नापसंद, क्योंकि बाज़ार में हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह की बातें होती है। वहाँ पर हमको बताया है कि अगर हम मार्केट में जाएंगे तो हमको वहाँ पर कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, ये हमको कलमा वहाँ पर पढ़ना है। तो हमको 3 लाख या इससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला नेकी देंगे, क्योंकि वहाँ पर दुनिया की और यहाँ की बातें होती है, वहाँ पर अल्लाह का कलाम पढ़ने वाले लोग ज़्यादा नहीं रहते, ठीक है। तो ये भी आपको एक बात मैंने बता दी, इंशाल्लाह हो सके तो इस पर अमल करना। इसमें बहुत ज़्यादा अल्लाह के तारीफ़ के कलिमात हैं, ठीक है। तो फिर अभी मैं क्या कह रही थी कि आपने सुना कि कितना बड़ा सैलाब आता है, ननन ने भी साथ नहीं दिया, तो ननन के ऊपर भी अभी इतनी सारी आजमाइशें आ गई। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा इस बात को कहते हैं कि झूठ और सच को अलग अलग रखो, मिलाओ मत। ये बात पे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला तो वैसे भी बहुत सख्त थे, लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा फरमाते थे कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत सख्त हूँ, मगर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े अल्लाह वाले और तकवा परहेज़गार थे, बहुत तकवा परहेज़गार, इतना ज़्यादा तकवा था उनके अंदर कि शैतान भी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर अपना रास्ता बदल देता था, डर जाता था वो। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह आप क्यों मुस्कुराए? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान वहाँ से आ रहा था, शैतान ने जैसे ही तुमको देखा वो भाग गया डर के। तो इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतना ज़्यादा तकवा और परहेज़गार थे वो। हम तो अभी गुनहगार है, अल्लाह हमको माफ़ करे, हमसे भी गुनाह हो जाते, लेकिन बहुत ही एहतियात करना है, बहुत ही एहतियात। मौलाना तारिक जमील के बयान में मैंने सुना था कि औरतें हमेशा ख्वाब देखती है, सांप देखती है, चिपलक देखती है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें बोले ये नंद और जेठानियाँ रहती है, ठीक है। ऐसा मौलाना तारिक जमील ने कहा था, मैंने बयान में सुना था, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा हसद से बचा जाए, खुद को बचाया जाए। इतने बड़े हासिदीन मत बनो कि दूसरों की भी दुनिया ख़राब हो जाए, हमारी भी दुनिया ख़राब हो जाए, आखिरत भी ख़राब हो जाए। जो नेक है, जिनको शहीद कर दिया, जिनको कत्ल कर दिया, उनके तो दर्जे आखिरत में बुलंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। दुनिया में तो अल्लाह ताला ने उनको मौत दे दी, लेकिन आखिरत में उनके दर्जे बुलंद होंगे, अल्लाह ताला उनको जन्नत देंगे, अल्लाह ताला उनको वहाँ पर खुश कर देंगे, राज़ी कर देंगे। और अल्लाह ताला ऐसे मजलूम लोगों से खुश रहते, राज़ी रहते। लेकिन जो ऐसे चापलूसी करते, जो ऐसे हासिदीन, बेहुदा बातें और राज खोलना और चुगली खाना, ये सब अल्लाह ताला
ताला को इतना ज़्यादा नापसंद है, अगर कोई गिबत कर रहा है तो हम सुनेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, और हम रोकेंगे कि गिबत नहीं करी जाए, बिल्कुल भी गिबत नहीं करी जाए, हम रोकेंगे गिबत करने से। तो अल्लाह ताला ये अमल को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, तो मैं सहाबा करम का किस्सा सुना रही थी, रह गया। तो सहाबा करम अपनी बांदी को लेकर मार्केट में जाते हैं, बांदी को बोलते हैं यहाँ पे तुम रुको, हम आते करके सहाबा करम बोलते हैं, नाम मुझे याद नहीं सहाबा का। तो बांदी वहाँ से दूसरी जगह चले जाती है। तो सहाबा करम आकर बोलते हैं कि तुमको मैंने यहाँ पर बैठने कहा था, क्योंकि वो टाइम का तो बहुत ज़्यादा ये था कि जैसा बोला वैसा ही करना है। तो उन्होंने कहा कि आका यहाँ पर कुछ लोग गिबतें कर रहे थे, इतनी गिबतें हो रही थी जो मुझे सुनाई दे रही थी, इसलिए मैं डर के वहाँ से चले गई कि कहीं अल्लाह नाराज़ नहीं हो जाए और कहीं ये ज़मीन फट नहीं जाए और ये सब ज़मीन के अंदर धंस नहीं जाए। तो इससे हमको पता चलता है कि हम अल्लाह ताला की जो भी ज़मीन के टुकड़े पर बैठकर किसी की गिबत करते हैं तो ज़मीन अल्लाह ताला को बोलती कि अल्लाह मेरा सीना चीर दे, क्योंकि ये खुदाबंदी के बिल्कुल ये है, बहुत अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे अजीज़ भाइयों, मेरे बच्चों, ये चीज़ों से बहुत बचा जाए। अगर कोई भी नादानी में ऐसी हरकतें कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, घर में बहका रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो याद रखना, मैं अल्लाह की कसम उठाकर बोलती हूँ कि इसका नतीजा बहुत बुरा रहेगा, बहुत बुरा। तुम ऐसा समझते होंगे कि हम तो बुराइयाँ कर रहे हैं, हम तो चापलूसी कर रहे हैं, हम तो बहका रहे हैं, हम इधर का उधर कर रहे हैं, हम सच और झूठ को मिला रहे हैं, फिर भी हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। मगर वो एक्चुअली में आप लोग खुश न रहते, वो अल्लाह का अजाब रहता है आपके ऊपर कि आप इतने सारे गुनाहों में मुब्तला रहकर, इतने बड़े बड़े गुनाह करके, किसी के घरों को ख़राब करके तुमको ऐसा लगता है कि तुम सुकून से रहेंगे, तो वो सुकून नहीं रहता है, वो अल्लाह ताला का अजाब रहता है। फिर वो एकदम से अल्लाह ताला एक दिन पकड़ में ले लेता है, और अल्लाह ताला की पकड़ ऐसी है, ऐसी पकड़ है कि दुनिया में कोई ऐसी पकड़ नहीं कर सकता है जैसे अल्लाह ताला पकड़ करते कि एक तरफ भी रास्ता नहीं बचता है, ना आगे से, ना पीछे से, ना दाएं से, ना बाएं से, ना ऊपर से, ना नीचे से, सब तरफ से अल्लाह ताला पकड़ में ले लेता है, जकड़ लेता है अपने बंदे को। और अल्लाह ताला जब नाराज़ होता है, जब अल्लाह ताला गज़बनाक होता है, तो इससे बहुत डरना है हमको, और बहुत अल्लाह से माफ़ी मांगनी है कि या अल्लाह हमने नादानी में ऐसे गुनाह किए, हमने बुराइयाँ पैदा करी, हमने झगड़े लगाए, अल्लाह तो हमको माफ़ कर। अल्लाह गफूर रहीम है, चाहे कितना भी बड़ा गुनाह कर लो। हदीस में आता है कि ज़मीन से लेकर आसमान तलक अपने गुनाहों का रचते जा, पूरी दुनिया गुनाहों से भर दे, लेकिन एक सच्ची तौबा कर ले, सच्ची तौबा, ऐसी तौबा कि या अल्लाह अभी ये गुनाह मैं फिर से कभी नहीं करूँगा, इस तरह से दिल में अपने वो कर ले कि या अल्लाह मैं ये गुनाह फिर से कभी नहीं करूँगा, इंशाअल्लाह अल्लाह गफूर रहीम है कि हर गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देना। और ये भी हदीस में आता है कि फिर से गुनाह हुआ तो फिर से माफ़ी मांगो, फिर से गुनाह हुआ तो फिर से माफ़ी मांगो। जब तलक सखरात का वक्त नहीं आ जाता तब तलक हमारे गुनाह माफ़ होते रहते हैं, लेकिन जब सखरात का वक्त आ जाता है तो फिर तौबा भी कबूल नहीं होती है, और कोई कलमा पड़ेगा भी तो फिर वो खौफ रहता है उसमें, वो ईमान में भी नहीं आ सकता काफ़ी। ठीक है, तो ये बात तो मेरे ईमान वाले भाइयों को, बहनों को अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि तौबा कर लो, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लो, सच्ची तौबा कर लो कि या अल्लाह हम ऐसा नहीं करेंगे, अल्लाह हम बाज आ गए, अल्लाह हमको माफ़ कर दे, निदामत करे, आंसू बहाए, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला